Okay, so in today's class, I'll be talking about conditional probability, and this is a very, very important concept. And the basic methods and idea formulas will be used further in a very another more important subtopic known as Bayes theorem. So please understand it very carefully. Conditional probability. As the name suggests, condition. So we know what exactly is a probability, but now there is some restriction, some condition which is being imposed. What all about that? Let us understand. So let A and B be the two events. Let A and B be the two events associated with the same random experiment. Now, probability of occurrence of A under the condition. What is that condition? B has already occurred. That is known as conditional probability, which is denoted by P of A by B. In fact, this P of A by B, some of the authors do write P of A by B. So of course it is no division as such. It is just a notation. So what we understood, P of A by B is actually the conditional probability. What we are doing, we are finding the probability of A given that एक चीज गिवन है वो क्या है कंडीशन क्या है P has already occurred. Given that P has already occurred or it has already happened, it is known to me. Given कोई चीज है इसका मतलब वो मुझे पता है वो पता है का मतलब मुझे उसकी probability भी पता है. So P of B will be known to you, and this is given by the formula P of A intersection B divided by P of B. So please finally make a note of this formula. Examples आएंगे तब easily clear हो जाएगा इसका meaning and significance. In case if I ask what is the meaning of P of B by A, so this is actually मैं सिर्फ B की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं और अब की बार क्या हुआ है जो बाद में लिखा है गिवन दैट A has already occurred and it is given by the formula क्या हो जाएगा P of समझिए ध्यान से इन दोनों का इंटरसेक्शन तो A इंटरसेक्शन B कहूं यहां आएगा B इंटरसेक्शन A दैट इज द सेम थिंग लाइक B इंटरसेक्शन A इज A इंटरसेक्शन B और नीचे किससे डिवाइड हो रहा है ये इसकी प्रोबेबिलिटी से दैट इज P of A. So we have P of B by A is given by this formula. So hardly matter now A and B, even if it is say E by F. So accordingly, I can derive my formulas very easily. Consider this example. अच्छा उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं सिंपल प्रॉपर्टीज हैं समझना A and B be the two events of the same sample space and let E be any event. अगेन सेम सैंपल स्पेस से है तो आपके पास P ऑफ A यूनियन B बाय E दिस इज इक्वल टू P ऑफ A बाय E प्लस P ऑफ B बाय E माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय E. Recall this formula
P ऑफ A यूनियन B क्या होता था? PA प्लस PB माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो बस अब इसी फॉर्मूला में क्या हुआ है, अगर P ऑफ पूछ लिया A यूनियन B, गिवन दैट ऑलरेडी कोई एक इवेंट हो चुका है बाय ई, तो बेसिक आइडिया इस हर एक के साथ एक तरह से कहेंगे डिवाइड बाय ई। ये डिवीजन नहीं है, बट जस्ट द वे वी आर राइटिंग इट। तो गिवन तीनों में ऐसे ई लग जाएगा एंड हेंस द फॉर्मूला। सिमिलरली अगर ए एंड बी डिसजॉइंट है, डिसजॉइंट का मतलब आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, राइट, तो उनका इंटरसेक्शन तो जीरो हो जाता है, तो दिस वुड बी जीरो, तो पहली लास्ट वाली टर्म हट जाएगी। सो दिस इज सिंपली डिडक्शन फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्मूला। और एक और सिंपल फॉर्मूला है P of not A by B, that is using the common sense, 1 minus P of A by B. So one can easily understand these two results. चेक आउट दिस डायरेक्ट क्वेश्चन। कई बार हो सकता है सिर्फ 1 मार्क का डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ही दे दें। P of A गिवन है, P of B is given and P of A intersection B. You need to find P of A by B. बस आपको इसका फार्मूला याद होना चाहिए। ये है इसका फार्मूला, नीचे क्या आएगा, इज इट ए और बी फॉर्मूला में? एनीवन? बी। ए ए जो बाद में लिखा होता है नीचे तो बी आएगा, राइट। तो बस वही था, अगर फॉर्मूला याद है फिर आप चेक करो, आपको तो सारी वैल्यूज गिवन है। P ऑफ B एंड 4/9 your required answer. So initially understand the formula, then we will move on. Check out this question. डाई इज रोल्ड, तो आपको पता है सैंपल स्पेस बेसिकली क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। इफ द आउटकम इज एन ऑड नंबर, अब आप चेक करिए आउटकम इज ऑड नंबर, ये चीज मुझे गिवन है, ये गिवन है, और फिर कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ प्राइम नंबर। तो ए जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और बी जनरली हम बाद वाले को ले लेते हैं कि आउटकम क्या आया था, ऑड नंबर, एंड वी नीड टू फाइंड प्राइम नंबर हो, गिवन गिवन इट इज द ऑड नंबर। तो एक बार ये दो चीजें समझ लीजिए। तो दो तरीके से मैं बताने वाला हूं। एक तो देखो ये फॉर्मूला अप्रोच है, सिंपल हम इस तरह से ये फॉर्मूला करेंगे, और अब ध्यान से सोचिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी प्राइम भी हो और ऑड भी हो। तो सोच के देखिए ए क्या था, प्राइम नंबर 2 3 5, और ऑड नंबर का मतलब 1 3 5। ए इंटरसेक्शन बी क्या बन गया, दोनों का इंटरसेक्शन क्या क्या है, कॉमन इज 3 and 5। तो व्हाट इज पी ऑफ ए यू इंटरसेक्शन बी,
टू केसेस फेवर कर गए आउट ऑफ 6 पॉसिबल, और डिवाइड बाय व्हाट इज पी ऑफ बी। बी के अंदर 3 एलिमेंट है। योर रिक्वायर्ड आंसर। अब इसी को दूसरा एक सिंपल अप्रोच जो शायद आप में से कुछ के माइंड में आई हो, दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली सोचना है। अब आपको गिवन क्या था, आउटकम इज एन ऑड नंबर। ये अब मेरे पास मेरा जो सैंपल स्पेस था, इसमें से मुझे ये ऑलरेडी बता दिया गया है कि ऑड नंबर आया। तो मेरा सैंपल स्पेस अब छोटा हो चुका है, लाइक दिस 135। अब इसमें से प्राइम नंबर, तो इसमें से अगर आप चेक करेंगे प्राइम नंबर, तो अब आप चेक करिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज प्राइम। तो प्राइम इसमें से कौन कौन से हैं, 3 एंड 5। ओनली 3 एंड 5 आर प्राइम नंबर्स। तो 2 केसेस आउट ऑफ 3 केसेस, योर रिक्वायर्ड आंसर। Sometimes student may find this direct approach convenient, but the only problem is ये बहुत लॉजिकल है, वेरी गुड इफ यू कैन अंडरस्टैंड एंड यूज इट, बट ये 1 मार्कर में दिस इज ओके डायरेक्ट जब आपको आंसर करना है। बट इन केस यू हैव टू एक्सप्रेस इट, 2 मार्कर है या ज्यादा और बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे, इन दैट केस यू नीड सम फॉर्मल अप्रोच टू आंसर। इस केस में आपको ऐसे सीखना पड़ेगा फॉर्मूला के साथ में। Check out this question. तो क्या कहा गया है, अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन। सबसे पहले तो सैंपल स्पेस ही सोचिए, 2 चिल्ड्रन में क्या क्या हो सकता है, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड गर्ल गर्ल। पहले वाले को एल्डर मान लिया, दूसरे वाले को यंगर वन। तो सैंपल स्पेस आई एम श्योर क्लियर है। what is the probability what is the probability that both the children are boys? जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको इवेंट ए ले लीजिए, बोथ आर बॉयज, गिवन दैट। अब गिवन को बी ले लेंगे। गिवन क्या है, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। तो पहले तो लॉजिकली सोचिए आपको निकालना क्या है, बोथ आर बॉयज गिवन दैट। गिवन के लिए बताया ना, ये कंडीशनल वाला लाइन ये आ गई, मींस आई एक्चुअली नीड इसका फॉर्मूला, वो ये हो जाएगा लाइक दिस। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। आप पहले, अगेन 2 मेथड हैं, एक तो लॉजिकल वो बाद में, पहले ये देखिए, बोथ आर बॉयज, ऑफ कोर्स ये आ गया। और सेकंड ये क्या बनेगा इसका, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, बीबी, बीजी और जी बी। इन दोनों से इंटरसेक्शन क्या आ गया, कॉमन दिख ही रहा है, बी बी, राइट। तो अब आप सोचिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। एक केस फेवर कर गया आउट ऑफ 4 पॉसिबल केसेस, एंड व्हाट इज पी ऑफ बी। बी के अंदर कितने केसेस थे, 3 cases out of 4 possibilities, your required answer। लॉजिकली अगर हम इसको सोचते हैं, तब मैंने आपको देखो क्या बताया, किस तरह से सोच रहे हैं। गिवन क्या था, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। तो ये
हो चुका है। अब मेरा जो मेन सैंपल स्पेस था वो रिड्यूस्ड होकर इतना बच चुका है, राइट। अब इसमें से मैं क्या चाहता हूं, दैट बोथ आर बॉयज, इसमें से बोथ आर बॉयज, एक ही केस आ रहा है। आउट ऑफ 3 पॉसिबिलिटीज, योर रिक्वायर्ड आंसर। Isn't it so simple to understand via both the methods? One is a formula approach, another is a logic. Sometimes हो सकता है स्टूडेंट्स को लॉजिक लगाने में कहीं अगर दिक्कत हो, अगेन नो नीड टू वरी, आप फॉर्मूला से कर लीजिए। पर प्लीज बी श्योर, बिकॉज ये बहुत बेसिक चीज है और आगे मैंने बताया वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ इट। बेस थ्योरम से ही आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट दिस ईयर 99% क्वेश्चन बेस थ्योरम से आएगा। और ये क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर तो बेस थ्योरम आसानी से समझ आ जाएगी। तो 5 मार्कर एक क्वेश्चन वहां से एक्सपेक्ट करते हैं हम। चेक आउट दिस। कहीं भी डाउट आए तो ऑलवेज अनम्यूट एंड आस्क और राइट इन अ चैट बॉक्स। 10 कार्ड नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स, मिक्स्ड अप थॉरोली। तो आपके पास सैंपल स्पेस तो यही हो गया ना, 1 2 3 करते करते 10 तक। देन वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। इफ इट इज नॉन, ये कीवर्ड है मेरे लिए, ये मुझे पता है, और जो चीज पता है वो इवेंट बी हो जाएगा। अभी आइडिया लगते रहेगा कि गिवन क्या है, द नंबर ऑन द कार्ड इज मोर देन 3। मोर देन 3 का मतलब 4 5 6 7 8 9 10, ये गिवन है। what is the probability that it is an even number? तो a even number का मतलब 2 4 6 8 10। बस अब आप इनसे इनका इंटरसेक्शन लिख लीजिए, वो दिख रहा है 4 6 8 10। लॉजिक से आप प्लीज आंसर निकाल लीजिए, मैं फॉर्मूला से लिख रहा हूं तब तक। दिस वुड बी माई फॉर्मूला, A intersection B, 4 cases out of 10, और P of B में कितने हैं केसेस, 1 2 3 4 5 6 7 cases, which is your required answer. And using a logic, डायरेक्ट कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, विदाउट एनी राइटिंग एनीथिंग, सिर्फ ए और बी सोच लिया। अब नॉन जो मुझे है वो ये चीज थी, राइट। मेरा सैंपल स्पेस रिड्यूस हो गया है सिर्फ बी के अंदर। अब इसमें से मैं क्या चाहता हूं, इवन नंबर। तो इसमें इवन नंबर 1 2 3 4, 4 केसेस आउट ऑफ पॉसिबल 7 केसेस, योर रिक्वायर्ड आंसर। फॉर्मूला के बिना भी हम इसको डायरेक्टली सोच सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार चैट बॉक्स में थोड़ा सर सा ये अगर मुझे पता चले। डिवाइड बाय 10 दिखाना जरूरी है? डिवाइड बाय 10, हाँ बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं फॉर्मूला में आप, तो प्रोबेबिलिटी हाफ से थोड़ी चलेगी कि आप अपना मतलब कि ठीक है वो दोनों में 10 से 10 कैंसल होगा तो हम उसे ना दिखाएं, ऐसा नहीं है। ऑफ कोर्स यू हैव टू शो इट, ये कंपल्शन है।
यहां पर देखो वही है, जो यही चीज जो आपने पूछी, अगर मैं लॉजिक से इसको करता हूं दिस साइड, तो डायरेक्ट मैंने सोचा अपना कि सैंपल स्पेस मेरा एक रिड्यूस हो चुका है ओनली बी, और अब इसमें से मैं क्या चाहता हूं, गेटिंग दी इवन नंबर। तो उस लॉजिक से सोचूंगा तो सीधा आंसर है, तब मुझे डिवाइड बाय 10 नहीं करना है नेचुरली। बट अगर आप फॉर्मूला अप्रोच लिख रहे हैं, देन यू आर बाउंड टू डू लाइक दिस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 4 नहीं है, वो 4/10 होगी। चेक आउट दिस क्वेश्चन। पहले एक बार समझिए, केसेस को पहले लिखिए अपने आप, ए एंड बी। So what do you observe here? A die is thrown 3 times। पहली बात तो ये, डाई अगर 3 टाइम टॉस होगी तो इट विल कंटेन 216 एलिमेंट्स। तो उन 216 केसेस को नहीं सोचने बैठ जाएंगे, लॉजिक लगाएंगे कुछ। कैसे? ए एंड बी क्या डिफाइन करें हैं? 4 ऑन द थर्ड थ्रो। तो सिंपली सोचिए, ए कैसे हो गया है, एक्स वाई यहां कुछ भी आ जाए, यहां पर 4 फिक्स है, राइट। और एक्स वाई ऑब्वियस है, वो 1 से लेकर 6 के बीच में ही आ रहे होंगे कुछ भी। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज एन ऑफ ए? हाउ मेनी सच केसेस आर पॉसिबल? 36। यस। आप लॉजिकली सोचिए, ये एक्स है ये वाई है, सिंपल कंसेप्ट तो बन गया। हाउ मेनी चॉइसेस एक्स हैव? 6। वाई के पास 6 चॉइसेस हैं, सो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस 36। तो अब ये 36 केसेस मैं लिख नहीं रहा हूं, वो सिर्फ हमारे माइंड में चलेंगे कि कैसे उसको अप्लाई करना है। अब जरा बी पे फोकस करिए। 6 ऑन फर्स्ट, 5 ऑन सेकेंड। यहां 6 है, यहां 5 है। अब ये फिक्स हो गया। अब बी को तो चलो मैं फिर चाहूं तो इजीली ऐसे लिख सकता हूं, भाई अगर पहले दो मुझे कम से कम पता है, तो नेक्स्ट में तो यही पॉसिबिलिटी आएंगी। सो देयर विल बी ओनली 6 केसेस लाइक दिस। अब आपको निकालना क्या था? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। बस सोचिए ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ऑफ बी। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? इन 1। दोनों में विच केस इज कॉमन? 6, 5, 4। सिंपल पता चल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में ये कहता है यहां 4 हो फिक्स, ये रहा, और ये कहता है यहां 6, 5 हो। तो देर इज ओनली वन केस विच इज कॉमन। तो 1/216 टोटल तो ये थे। और अब व्हाट इज पी ऑफ बी? 6 केसेस आउट ऑफ 216 केसेस, योर रिक्वायर्ड आंसर। और लॉजिक से मैं समझ रहा हूं कि अब आप इजीली कर पा रहे होंगे। फोकस ऑन बी, लॉजिक की बात कर रहा हूं। फोकस ऑन बी, क्योंकि मेरा सैंपल स्पेस रिड्यूस होकर ये आ चुका है, इसमें से ये हो जाए तो एक केस आ गया आउट ऑफ 6 पॉसिबल केसेस। तो डायरेक्ट आंसर 1/6। Check out this.
Another important question. A die is thrown twice. तो अब मुझे पता है 36 केसेस हैं। अब आप उन केसेस को चाहो तो बिल्कुल वैसे सोच सकते हैं ना, 1 1 1 2। ओ सॉरी, फिर सीधा 6 वाले बस हम ऐसे बता देते हैं। तो ये अपने लिए है, नहीं भी लिखोगे काम चल जाएगा। अब क्या कहा है, a die is thrown twice and sum of the number appearing is observed to be 6। गिवन क्या है, बी। बाद वाला मैं बी लिखता हूं ना, जो चीज आपको गिवन होती है। और गिवन क्या है, सम इज 6। दैट इज, सोचे जरा बी क्या क्या हो सकता है। सम 6 कब आता है, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। What is the conditional probability that the number 4 has appeared at least once? 4 appeared at least once. Can anyone answer it logically without formula? 2 बार। आंसर क्या होगा? इसका 2/5 आ रहा है टोटल, Yes. मतलब आंसर। सिंपल, 2/5। अब आप फॉर्मूला से करेंगे तो ऑफ कोर्स वो लेंदी जाने वाला है। आपने देखो क्या सोचा होगा, जैसे मैंने बताया ना कि जो चीज गिवन है, अब उससे मेरे को रिड्यूस्ड सैंपल स्पेस मिल गया। ये चीज तो गिवन है। अब इसमें से मैं क्या चाहता हूं, गेटिंग दी 4 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। तो ये 2 केसेस आउट ऑफ 5 केसेस, आंसर। बट अब फार्मूला अप्रोच से अगर मैं करके दिखाऊं आपको, तो वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, 4 अपीयर्ड एटलीस्ट वंस। और ये तो वो आपको पता है 2 केसेस आ ही रहे थे, तो वो हो गया 2/36 अपॉन व्हाट इज पी ऑफ बी। कर मैं वही चीज रहा हूं, बस थोड़ा सिंपल वे में सोचना बता दिया है। योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये 2 मार्कर आपके क्वेश्चन है, सिंपल। ऑफ कोर्स इन होमवर्क डायरेक्ट क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड, यू कैन इजीली डू। नेक्स्ट भी ये सिंपल ही है, बट इसमें से चलो 4th क्वेश्चन एक कर लेते हैं। इवेल्युएट पी ऑफ ए यूनियन बी, ये निकालना है। इफ 2 times p of a is p of b is 5/13 एंड एक और चीज आपको गिवन है, चेक करिए। इससे p ऑफ a कितना आ गया, इसे और इसे कंपेयर करा, 5/26। p ऑफ b चलो अलग से गिवन ही था, 5/13। अब व्हाट इज दिस, p ऑफ a बाई b, फार्मूला ये होता है, मीन्स p ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना आ गया, 2/5 टाइम्स p ऑफ b। और p ऑफ b मुझे पता है, ये रहा 5/13। अब सोचिए जरा क्या निकालना था। नाउ हाउ आई एम गोइंग टू फाइंड p ऑफ a यूनियन b।
It is your 10th class or 11th class formula. P of A plus P of B minus P of A intersection B. If you observe carefully, आपको सारी वैल्यूज सामने पता चल रही हैं. यूज देम. एक कोई, हाँ ठीक, टेक द एलसीएम एंड सिंप्लीफाई. थर्ड अपने आप देख लेना, सिंपल है इन होमवर्क. अब फर्दर जो क्वेश्चंस एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की ही ली है मैंने, ये ऑफ कोर्स एक्सरसाइज 13.1. तो 6 से 9th क्वेश्चन तक में हर एक में P ऑफ E बाई बी निकालना है. बस केसेस डिफरेंट है. जैसे 6 क्वेश्चन में कह रहे हैं अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. फिर फर्स्ट पार्ट अलग चीज, अलग अलग सिचुएशन दे दिया, और वो सिचुएशन को लिखना 10th क्लास में आप सीख चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं इसमें से थर्ड पार्ट. तो आप चेक करिए, सबसे पहली बात 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा मेरा सैंपल स्पेस. हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, ये तो आई एम श्योर आप क्विकली लिख लेंगे ये. और फिर टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, and tail tail tail. Now what exactly is the event E? At most 2 tails. ज्यादा से ज्यादा 2 tails दिखनी चाहिए. कम से कम 0 भी हो सकती हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 2 tails होनी चाहिए. So I'm sure everyone is clear कि 7 cases ये वाले आ जाएंगे इसमें. So I don't think I need to explain this. ये आप सब ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं और कॉन्सेप्ट की, वर्ड का मीनिंग क्लियर होना चाहिए. एट मोस्ट 2 टेल्स, तो मैक्सिमम 2 टेल्स है. इसका मतलब कम से कम 0 टेल भी हो सकती है. एफ क्या है? एट लीस्ट 1 टेल. कम से कम एक टेल होनी चाहिए. डोंट यू थिंक सो? उसका मतलब सिर्फ ये वाला केस आप हट जाएगा, तो वो क्या बन जाएंगे? एच एच टी, एच टी एच. कम से कम एक टेल हो, ज्यादा से ज्यादा ऑफ कोर्स सारी तीनों टेल्स हो सकती हैं. एंड यू नीड टू फाइंड P of E by F, which is a direct formula. बस अब आप सोच लीजिए E इंटरसेक्शन F, कॉमन इसमें क्या क्या आपको दिख रहा था, वो वाले केसेस ले लेंगे. हाउ मेनी केसेस वर कॉमन? चेक इट आउट. 6 केसेस आ रहे हैं कॉमन, वो आप लिख के देख लेना. 6 केसेस कॉमन है, तो 6 बाय 8, और P ऑफ F में 1 2 3 4 7 केसेस है आउट ऑफ 8. योर रिक्वायर्ड आंसर. कोई भी डाउट है तो प्लीज डू क्लैरिफाई. ये तो उससे भी इजी क्वेश्चन है. 3 कॉइन्स का कर चुके हैं, ये तो सिर्फ 2 कॉइन्स वाला केस है. डू इट इन योर होमवर्क. एक ये वाला क्वेश्चन और देखते हैं अभी. मदर, फादर एंड सन
लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। तो सबसे पहले तो ना वही हम मदर एम हो गई, फादर एफ हो गया, डिनोट कर दिया इस तरह से। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है सोच के देखिए, फोटोग्राफ होनी है, एक लाइन में खड़े होना है। एम एफ एस हो सकता था या एम एस एफ। अब मैंने कहा मदर लेफ्ट की जगह मान लो फादर से शुरू कर देते, फिर फादर के बाद क्या होता, मदर सन या सन मदर। अब हम लेफ्ट से शुरू कर देते, सन को खड़ा कर दें, फिर क्या हो सकता था यहां पर, फादर मदर या मदर फादर। आई एम श्योर एवरीवन इज क्लियर अबाउट द सैंपल स्पेस। मतलब इसमें से चेक करिए इवेंट्स क्या क्या डिफाइन करे गए हैं। ई, सन ऑन द वन एंड, क्लियरली सन ऑन द वन एंड, लेफ्ट में हो या राइट में हो, सन एक एंड में दिखना चाहिए। तो चेक करिए ये 4 केसेस आ रहे हैं, सन ऑन द वन एंड, या लेफ्ट में होगा एक्सट्रीम या एक्सट्रीम राइट में होगा। एफ क्या है, फादर इन द मिडल। अब फादर इन द मिडल ये केस है और ये केस है, एम एफ एस एस एफ एम, व्हाट इज देयर इंटरसेक्शन, सोचिए ध्यान से। डोंट यू थिंक सो ये दोनों केसेस ही आ रहे हैं इन दोनों के इंटरसेक्शन में। देख लीजिए ध्यान से, आपको ये निकालना था विच इज ए इंटरसेक्शन एफ, 2 केसेस आउट ऑफ 6, और एफ में भी 2 केसेस आउट ऑफ 6। दिस इज द श्योर इवेंट, द आंसर इज 1। तो प्रैक्टिस दिस, एंड होमवर्क के लिए बस अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। तो 1 2 3, बाकी कल की क्लास में मतलब मंडे को कवर होंगे। इफ यू विश यू कैन ट्राई, इवन ये भी समझ आ जाएगा। 4th, ये वाला लास्ट वाला थोड़ा डिफरेंट है, ये नहीं हो पाएगा। बाकी कंप्लीट एक्सरसाइज 13.1 जितना आप कर पाए, एटलीस्ट फर्स्ट 10 क्वेश्चंस तक। You can leave the class if no doubt. Jayaditya and Srishti, leave the class. Srishti.